Hello friends, welcome to EduTap. If you can hear me, if the audio is clear and the video is clear, please give me a thumbs up in the comment section. Thank you very much for joining into this Intelligence Bureau ACIO Examination 2020 live session. In this live session, we are going to discuss certain important topics of economy, particularly the chapter of monetary policy. This is the fourth lecture of the series. We are coming out on a regular basis with live sessions aimed at helping you crack the ACIO examination 2020. You must watch all the previous live sessions conducted by myself and all my colleagues. It will give you a very good insight into the requirement of the examination. I request you once again that we have to start this lecture. Please give me a thumbs up in the comment section if the audio is clear and the video is clear. Right? In the previous lecture also we had spoken a little about monetary policy. In this lecture also we are going to continue our discussion and take it ahead and discuss some more important points related to monetary policy. I would like to remind you that we have created a very beautiful, a very comprehensive course aimed at this examination, covering all aspects of this examination. You must enroll into that very cost effective and very comprehensive course if you are seriously preparing for this examination. Right? Ayushi Srivastav, hi. I request all students present to please give me a thumbs up in the comment section. Everything should be clear, the audio should be clear and the video should be clear. Everything looks clear to me at my end, but I'm still waiting for some confirmation from the students. Satish, Munna, Ayushi, right. Let us begin. So EduTap has a very beautiful YouTube channel on which we are obviously hosting this live session. Do subscribe to this YouTube channel because we are coming out on a very regular basis with a very good number of live sessions aimed at various different examinations. We are having a Telegram channel. So all the lectures that are conducted on this channel, the notes related to those videos are made available to students at free of cost through our Telegram channel, and a lot of good information is also shared through our Telegram channel. So do become a part of our Telegram channel, right? Keep that in mind. We have launched this full video master course covering tier 1, tier 2, tier 3, all aspects of the examination. So you can very clearly see that chapter wise videos and MCQs of quantitative aptitude, reasoning ability and English have been provided to you, right? Chapter wise concept videos, concept notes and quizzes of all GS components have been provided to you, of which economy is a part. Monthly magazine and quizzes of general awareness have been provided so that your current affairs preparation is the strongest in the entire country and you are able to ace this examination. Furthermore, in tier 2, we will be coming out with video lectures for essay writing, précis and reading comprehension. Fodder material will be provided as well as sample exercise will be provided so that you are absolutely thoroughly prepared for tier 2. For tier 3, we will be providing interview guidance from experts as well as mock interviews so that you can actually go into the interview panel feeling all the confidence in the world and you are able to perform well. This is a very beautiful, comprehensive and cost effective course in which you must enroll. Keep that in mind. Now, first question has been placed in front of you. I am going to discuss certain very key concepts related to economy, related to monetary policy with you today in this particular video. And the first concept that I want to discuss with you is cash reserve ratio, right? With reference to cash reserve ratio, which of the following option is correct? It helps in securing monetary stability in the economy. Reserve Bank of India prescribes CRR for scheduled commercial banks with no floor or ceiling rate, यानी कि CRR को कितना भी कम कितना भी ज्यादा कर दिया जा सकता है. It increases the cost of funds for banks, यानी कि CRR makes it costlier for banks to have funds, to access funds. And the fourth option is all of the above. You should know the concept of CRR, not only the definition but also the implication, also the various manifestations of that concept to be able to answer this question. If you ask me that what is the difficulty level of this question, is it difficult, is it moderate, is it easy, I would say that it is moderate to difficult kind of a question, because it is not simply asking you a definition, it is challenging you, it is challenging your knowledge, your ability to understand and analyze everything that CRR is all about, right? Therefore this is a moderate to difficult level of question, right? चलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने आंसर्स बता दीजिए. इनसेन ओनली वन पोस्ट कैन बी सिलेक्टेड इन नाबार्ड. ओके, नाबार्ड का प्रिपरेशन की बात मत करिए, एग्जाम से पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. आयुषी श्रीवास्तव, एग्जाम से पहले कोर्स आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा.
कोर्स के अंदर बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी लोड कर दिए गए हैं, बहुत सारे टेस्ट्स रेगुलर बेसिस के ऊपर लोड कर दिए गए हैं, एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि एग्जाम के पहले कोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा और बहुत ही शानदार तरीके से खत्म होगा। सिर्फ खत्म नहीं होगा, बहुत ही शानदार तरीके से खत्म होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मेनी स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट द आंसर शुड बी ए, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट द आंसर शुड बी सी, some others are saying that the answer should be D, which is precisely why I said that this question is moderate to difficult, as we can see that there are various different answers that we are able to see. Now let me explain what CRR is all about. Before I discuss CRR with you, I want to tell you something very conceptual, something very basic, something which you should never forget. Right? अपने बाथरूम में नल लगा रहता है, टैप. Right? We have a tap in our bathroom, in our wash basins, in our washroom, there is a tap. If you open the tap, water will flow. If you close the tap, water will stop flowing. As simple as that. Right? Now, imagine that instead of the basin, we are talking about the economy. Instead of the tap, we are talking about the monetary policy tools. And instead of me opening and closing the tap, imagine RBI is opening and closing the money tap. So there is a money tap. राइट, बेसिन की जगह पे आप इकोनॉमी को इमेजिन करिए. राइट, और वो जो मनी टैप है वो आरबीआई ओपन कर सकता है और क्लोज कर सकता है. अगर आरबीआई मनी टैप को ओपन करता है, सो मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग आउट ऑफ द टैप इनटू द इकोनॉमी. राइट, अगर आरबीआई उस टैप को थोड़ा सा टाइट कर देता है तो लेस मनी विल फ्लो आउट ऑफ द टैप इनटू द इकोनॉमी. इफ द आरबीआई पूरा बंद कर देता है टैप को, सो नो मनी विल फ्लो आउट ऑफ द टैप इनटू द इकोनॉमी. और मान लीजिए कि बहुत ही स्पेशल प्रकार का टैप है कि आरबीआई अगर उस टैप को उल्टे डायरेक्शन के अंदर घुमाए, सो आरबीआई कैन सक मनी आउट ऑफ द बेसिन, यानी कि सक मनी आउट ऑफ द इकोनॉमी. इस प्रकार से भी आरबीआई कर सकता है. यानी कि व्हाट कैन आरबीआई डू विद द मनी टैप? इट कैन इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी, इट कैन रिड्यूस द फ्लो ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी, इट कैन स्टॉप द फ्लो ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी, इट कैन सक द मनी आउट ऑफ द इकोनॉमी. जैसे बचपन में पिचकारी से हम खेला करते थे ना, बाल्टी के अंदर से, बकेट के अंदर से पानी लिया, राइट, खींचा तो पानी आ गया, उसी बकेट के अंदर जोर से फिर हमने छोड़ा तो पानी चला गया. उस प्रकार का आपको कुछ इमेजिन करते रहना है इस सारे डिस्कशन के दौरान. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और मैं उसको लिंक करता हूं मेरे इस एग्जांपल के साथ. व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? अज्यूम दैट यू आर एचडीएफसी बैंक, अज्यूम दैट यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट्स. राइट, मेरा सेविंग बैंक डिपॉजिट एज वेल एज लाखों लोगों का सेविंग बैंक डिपॉजिट आपने ले रखा है, सपोज कर लीजिए. राइट, हम में से कोई भी कभी भी आके कोई भी ब्रांच में से पैसा विड्रॉ कर सकता है. करेक्ट, क्योंकि हम हमारा पैसा मांग रहे हैं, लोन नहीं मांग रहे हैं आपसे. हमने आपको पैसा दिया, वी कैन विड्रॉ दैट मनी व्हेनेवर वी वांट. राइट, आपके पास वो पैसा रहना चाहिए देने के लिए. राइट, तो वो कैसे इंश्योर करा जाए कि आपके पास एटलीस्ट थोड़ा सा कैश है, सच दैट कि आपके अगर कस्टमर जाके अपना कैश मांगते हैं तो आप उनको उनका कैश दे सको. दैट कैन बी इंश्योर्ड थ्रू कैश रिजर्व रेशियो. व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? इट इज केप्ट विद आरबीआई एज कैश, a percentage of NDTL, यानी कि every bank, HDFC Bank for example, has to keep a percentage of its net demand and time liabilities in the form of cash with RBI. What is the meaning of NDTL? What are demand liabilities? Demand liabilities of banks are those liabilities of bank जो कि बैंक को कभी भी पूछा जा सकता है, मांगा जा सकता है और बैंक को चुकाना पड़ेगा. जैसे बैंक ने आपसे सेविंग बैंक अकाउंट ले रखा है आपका, राइट, आपका सेविंग्स आपके पास, उनके पास डिपॉजिट के फॉर्म में होल्ड करी हुई है, तो वो बैंक की लायबिलिटी है, यानी कि बैंक विल हैव टू पे दैट. राइट, वो बैंक की लायबिलिटी है. क्यों? क्योंकि वो पैसा आपका है. तो आपने जो सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर पैसा रख रखा है, उस पैसे को आप कभी भी जाकर बैंक से मांग सकते हो और बैंक को वो पे करना पड़ेगा. इसीलिए वो बैंक की लायबिलिटी है और वो डिमांड लायबिलिटी कि आप कभी भी जाकर मांग सकते हो और बैंक को पे करना पड़ेगा. व्हाट इज टाइम लायबिलिटी? फिक्स्ड डिपॉजिट इज अ टाइम लायबिलिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम लायबिलिटी? आपने अगर एचडीएफसी बैंक को टाइम डिपॉजिट यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट दिया है तो आपने उसको 5 साल तक के लिए दिया है, 7 साल तक के लिए दिया है, तो बैंक और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आप 5 साल बाद ये पैसा मांगने आने वाले हैं, 7 साल बाद ये पैसा मांगने आने वाले हैं, यानी कि ये टाइम डिपॉजिट है, लंबे समय के लिए डिपॉजिट आपने बैंक के पास रखा है. लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं जो प्रीमेच्योर विड्रॉ कर सकते हैं. राइट, तो जो भी बैंक का नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज कैश के फॉर्म के अंदर आरबीआई के पास रखना पड़ता है. कितना परसेंटेज कैश के फॉर्म के अंदर आरबीआई के पास रखना पड़ेगा? मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक के पास 100 लाख रुपए का डिपॉजिट है, मान लीजिए 100 लाख रुपीस का डिपॉजिट है, तो उस 100 लाख रुपीस के डिपॉजिट के अंदर से कितना कैश के फॉर्म के अंदर आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, ये जो परसेंटेज है दैट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई एज अ पार्ट ऑफ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन. जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो डिसीजन लेती है उसमें वो डिसाइड करके बताती है कि सीआरआर का क्या परसेंटेज रहेगा. ये कैश को क्यों साइड में रखवाया जाता है? ताकि बैंक्स
आर एबल टू मीट द कैश नीड्स ऑफ देयर डिपॉजिटर्स। चाहे कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो, उन सारी बैंकों को जो है सीआरआर को मेंटेन करना पड़ेगा। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। इस चीज को समझना जरूरी है। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज प्राइस राइज। ठीक है, तो पहला स्टेप है व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज प्राइस राइज। प्राइस होता है, प्राइस राइज तब होता है जब डिमांड इज एक्सीडिंग सप्लाई। ऑब्वियस ही बात है, जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तब प्राइस राइज होएगा, क्योंकि अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो जो बेचने वाला है वो भी शाना है, वो भी अपना दिमाग लगाएगा, वो भी महंगे के अंदर चीजों को बेचेगा, राइट? सो व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, प्राइस राइजेस। ठीक है, व्हेन इज डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई? व्हेन लोगों के पास डिमांड करने की ताकत होती है। लोगों के पास डिमांड करने की ताकत कब होती है? जब उनके पास पैसा होता है, तब उनके पास डिमांड करने की ताकत होती है। अगर लोगों की जेब में पैसे को कम कर दिया जाए तो क्या लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट? तो अगर कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई कम कर देता है, यानी कि बैंक्स को कम पैसा कैश के फॉर्म के अंदर होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि बैंक ज्यादा से ज्यादा कैश लोन के फॉर्म के अंदर दे सकती है, डिपॉजिट्स को लोन के फॉर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, तो लोग बहुत आसानी से बैंकों से लोन ले पाएंगे और वो पैसा जो लोन लिया है उससे वो लोग डिमांड क्रिएट कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज कर देती है आपका सीआरआर, व्हाट दैट विल डू इज कि बैंक्स को एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो है सीआरआर के तौर पे साइड में रखना पड़ेगा, यानी कि बैंक्स उतना लोन नहीं दे पाएगी। अगर बैंक्स कम लोन दे पाएगी तो लोगों के हाथ में कम पैसा जाएगा, लोगों के हाथ में कम पैसा जाएगा तो लोग कम डिमांड क्रिएट कर पाएंगे। मैं आपको एक सिंपल न्यूमेरिकल लगा के बता देता हूं ये चीज। मान लीजिए 100 लाख जो है डिपॉजिट है एचडीएफसी बैंक का, और मान लीजिए हाइपोथेटिकली सीआरआर इज 5%, यानी कि एचडीएफसी बैंक को 5 लाख रुपया कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा, वो लोन नहीं दिया जा सकता है। वो डिपॉजिट जो 100 लाख का है उसमें से 5 लाख जो है सीआरआर के फॉर्म के रखना पड़ेगा, एंड 95 लाख रुपीज जो है एचडीएफसी बैंक कैन गिव आउट एज लोन्स। ठीक है ना? अब ऑन द अदर हैंड आप इमेजिन करिए कि सीआरआर इज 1%, यानी कि अगर 100 लाख का डिपॉजिट एचडीएफसी का है तो 1 लाख केवल जो है एचडीएफसी को सीआरआर के फॉर्म के लिए कैश के फॉर्म के अंदर रखना पड़ेगा। रिमेनिंग 99 लाख रुपीस जो है एचडीएफसी बैंक लोन दे सकती है। पहले केस में 95 लाख लोन दे पा रही थी, अब 99 लाख दे पा रही है, राइट? अगर आरबीआई को प्राइस को नीचे उतारना है, अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, तो आरबीआई क्या करेगा कि एचडीएफसी बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करेगा। लेंडिंग कैपेसिटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सीआरआर को बढ़ाएंगे तो लेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी, राइट? अगर 1% सीआरआर है तो 2% कर दो, 3% कर दो, 4% कर दो, तो उससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है, ज्यादा पैसा कैश के फॉर्म के अंदर साइड में रखना पड़ेगा, वो आप लोन नहीं दे पाएंगे। और अगर आप लोन नहीं दे पाएंगे तो ऑब्वियसली बात है डिमांड नहीं क्रिएट होगी, डिमांड नहीं क्रिएट होगी उतनी ज्यादा तो प्राइजेस विल कम अंडर कंट्रोल। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। I would again like to go back to my simple example, right? जो मैंने आपसे बेसिन का और टैप की बात करी थी, right? If the CRR is increased, money supply will reduce. Like I explained to you, if 1% CRR, I have to keep aside only 1 lakh rupees. If CRR is 5%, I have to keep aside 5 lakh rupees. तो 5 लाख रुपया मैं लोन नहीं दे पाऊंगा। तो if CRR is increased, banks have to keep extra amount of their deposits as cash. They will not be able to lend that money. Therefore, money supply will कम डाउन। तो सीआरआर को इंक्रीज करना यानी कि मनी टैप को टाइटन करना इज जस्ट एज सिंपल एज दैट। आपको याद रखना है कि सीआरआर को इंक्रीज करना यानी कि मनी सप्लाई को टाइटन करना। सीआरआर को इंक्रीज कब करते हैं? जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना रहता है, प्राइजेस को नीचे उतारना रहता है, तब सीआरआर को इंक्रीज करा जाता है, राइट? और जब ग्रोथ को हमारे को बूस्ट करना रहता है तो सीआरआर को नीचे उतारा जाता है। कैसे? अब अगर मैंने सीआरआर रिड्यूस कर दिया तो आपकी जेब में एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा, क्योंकि बैंक ज्यादा लोन दे सकती है तो आपकी जेब में भी ज्यादा पैसा आ सकता है। जब आपकी जेब में पैसा आएगा तो आप उस पैसे को खर्चा करने जाओगे, यानी कि आप डिमांड क्रिएट करोगे। आप डिमांड क्रिएट करोगे यानी कि प्रोडक्शन होएगा, प्रोडक्शन होएगा यानी कि जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा यानी कि ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, 2-3 बार आप अगर इस कॉन्सेप्ट को सुन लेते हैं, वीडियो को आगे पीछे करके और अच्छे से लिखकर समझ लेते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। सारी चीजों को मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है। एसएलआर के अंदर भी इस चीज को डिस्कस आपसे वापस से करवाऊंगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, it helps in securing monetary stability in the economy. What is the meaning of monetary stability? Prices should be under control, growth should be at a decent level. This is the meaning of monetary stability. अभी मैंने आपको क्या एक्सप्लेन करा कि if the prices are increasing, if the inflation is too high, what we can do is that we can increase the CRR
सीआरआर इंक्रीज करने से क्या होगा कि बैंक्स को ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है कैश के फॉर्म के अंदर साइड पे रखना पड़ेगा, वो लोन नहीं दे पाएंगे, लोन कम दे पाएंगे। देयरफॉर उसकी वजह से क्या होगा कि वो लोन जब कम दे पाएंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो डिमांड कंट्रोल में रहेगी, तो प्राइजेस भी कंट्रोल में आ जाएंगे, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। मान लीजिए ऑन दी अदर हैंड इन्फ्लेशन कंट्रोल में, प्राइसेस कंट्रोल में, लेकिन लो डिमांड की वजह से जीडीपी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो आरबीआई क्या कर सकती है, सीआरआर को रिड्यूस कर दिया। सीआरआर को रिड्यूस करने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पहले 5% सीआरआर था और अब 1% कर दिया, तो पहले 5 लाख करोड़ 5 लाख रुपया साइड में रखना पड़ता था सीआरआर के लिए, अब 1 लाख रुपया ही साइड में रखना पड़ेगा सीआरआर के लिए। यानी कि ज्यादा पैसा एचडीएफसी बैंक लोन दे पाएगी, ज्यादा लोन दे पाएगी यानी कि डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी यानी कि प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा यानी कि ग्रोथ बढ़ेगी। तो इस प्रकार से डिपेंडिंग अपॉन द सिनारियो क्या है, जो भी बैंक है आरबीआई वो डिसाइड करेगी सीआरआर क्या है, और इन्फ्लेशन को और ग्रोथ को सही लेवल के ऊपर रखेगी, यानी कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी को बरकरार करने की कोशिश करेगी। इस प्रकार से आपको इंटरप्रेट करना चाहिए। आरबीआई प्रिस्क्राइब सीआरआर फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक विद नो फ्लोर और सीलिंग रेट, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। If you read our handouts, detailed handouts that we have provided, you will see that this line is very clearly lifted from there, that there is no floor or ceiling rate on CRR. It increases the cost of funds for banks. CRR increases the cost of funds for banks. How exactly समझाता हूं आपको। पहले अगर मान लीजिए कि 100 लाख रुपए का डिपॉजिट है एचडीएफसी बैंक के पास, तो ये 100 लाख रुपए का जो डिपॉजिट है इसके ऊपर सबके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एचडीएफसी बैंक को। मान लीजिए एचडीएफसी बैंक ने 5% इंटरेस्ट प्रॉमिस करके डिपॉजिटर से पैसा इकट्ठा करा है, तो जो 100 लाख का रुपया इकट्ठा हुआ उसके ऊपर 5% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। अब बैंक कमाती कैसे है, बैंक ये 100 लाख रुपए को जो है मान लीजिए 10% के ऊपर लेंड कर देती है। 100 लाख रुपया सपोज कर लीजिए बैंक ने 5% के हिसाब से इकट्ठा करा और इसी 100 लाख रुपए को जो है 10% के हिसाब से इंटरेस्ट के ऊपर दे दिया, लोन के ऊपर दे दिया, तो 10% एचडीएफसी बैंक को इंटरेस्ट मिलता है और 5% एचडीएफसी बैंक पे करती है। यानी कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5% का अगर हम माने, राइट, कि कितना इंटरेस्ट मिला, कितना इंटरेस्ट पे करा, सपोज कर लीजिए हाइपोथेटिकल फिगर है सारे, तो इतना एचडीएफसी बैंक कमा लेती है, राइट, क्योंकि उसकी जो लोन है उसकी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। अब होने क्या लग रहा है कि अगर सीआरआर 5% है तो 100 लाख जो इकट्ठा हुआ उस पर 5% पे करना पड़ेगा, और सीआरआर 5% है तो 5 लाख रुपया एचडीएफसी बैंक लेंड नहीं कर पाएगी, वो 5 लाख रुपए को डेड कैश के तौर के ऊपर रखना पड़ेगा, यानी कि 95 लाख ही आपको लेंड करने को मिलेगा, राइट। इसका मतलब ये है व्हाट हैपेंस इज कि बिकॉज ऑफ सीआरआर कॉस्ट ऑफ फंड्स इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो जो 5 लाख रुपया जो नहीं लेंड कर पाएगी बैंक, उसके ऊपर इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा डिपॉजिटर को, लेकिन वो 5 लाख रुपया कुछ कमा कर नहीं लाएगा, तो जो रिमेनिंग 95 लाख रुपीस जो लेंड करेंगे वो उसका कॉस्ट ज्यादा हो गया ना, बेसिक बात ये है। तो देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर, आई रियली होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर। बहुत लंबा डिस्कशन मैंने क्यों करा है उसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। 4-5 चीजों को मैंने आपको इसमें इंक्लूड करवा के समझाया है। एक तो सीआरआर, उसके पहले मनी टैप, उसके पहले आरबीआई, उसके साथ इन्फ्लेशन, उसके साथ ग्रोथ। मैं जितनी बार ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं ना उतनी बार मुझे कम लगेगा। आपको अगर 1 रुपए का भी डाउट है तो आप मेरे को डाउट अपने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएं, राइट। स्टूडेंट स्टोर एज वेल एज निखिल, मेघा, मुन्ना, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, श्रीपद, आयुषी, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये चीज समझ में आई है, राइट, कि ये सारी चीजें कैसे है, तो आप मेरे को प्लीज बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया है। दीपक सिंह, स्टूडेंट स्टोर, निखिल, मैं आप सभी लोगों से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मैंने आपको सीआरआर का क्वेश्चन एक्सप्लेन करते दौरान ये बताने की कोशिश करी है सर कि ये सीआरआर का मतलब क्या होता है, राइट। सीआरआर को कब इंक्रीज करा जाना चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंक्रीज करा जाना चाहिए। सीआरआर को कब रिड्यूस करा जाना चाहिए, ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए सीआरआर को रिड्यूस करा जाना चाहिए। सीआरआर को इंक्रीज करने से मनी सप्लाई के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है और उसकी वजह से ग्रोथ के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को यदि समझ में आ गया तो प्लीज एक बार थम्स अप दे दीजिए। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करेंगे दोस्तों स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की, एसएलआर की। विथ रिस्पेक्ट टू एसएलआर, राइट, एक मिनट सर, सीआरआर तो आरबीआई डिसाइड करता है ना। स्टूडेंट स्टोर, सीआरआर बिल्कुल आरबीआई डिसाइड करता है। मेघा, आपको समझ में आ गया है, थैंक यू वेरी मच। मुन्ना, आपको समझ में आ गया है, थैंक यू वेरी मच। नोबडी इनसेन, आपको भी समझ में आ गया है, बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने रखा है। विथ रेफरेंस टू एसएलआर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट, पूछा है आपको। ये एक वेरिएशन मैं आपको दिखाने लग रहा हूं क्वेश्चन के अंदर, जिसमें मैं आपको बोल रहा हूं कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट को, ऑप्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है, नॉट करेक्ट को,
राइट। एग्जाम के अंदर करेक्ट और नॉट करेक्ट से बच के चलिएगा। अगर आप जल्दीबाजी के अंदर इस नॉट करेक्ट को नहीं पढ़ते हैं और गलत आंसर लगाकर आ जाते तो आपके नेगेटिव मार्किंग बन जाएंगे। राइट, तो ये प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है। राइट, it is a mechanism used by commercial banks to provide credit to the government. It is also applicable to local area banks and cooperative banks. It forces banks to have sufficient vault cash to meet their day-to-day requirements. Banks earn return on investment made under SLR. चार ऑप्शंस है एंड नॉट करेक्ट ऑप्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है। राइट, मेघा जी, नाबार्ड ग्रेड ए नोटिफिकेशन के बारे में आइडिया मत पूछिए, ये आईबी का सेशन है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। आपकी नाबार्ड की जो क्वेरी है वो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, आप कॉल कर सकते हो, आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करिए। राइट, निखिल आपने पूछा डज द बैंक हैव अ से इन डिसाइडिंग द सीआरआर परसेंटेज? नहीं, आरबीआई डिसाइड करती है कि सीआरआर क्या होगा। स्टूडेंट स्टोर आपने पूछा कि सेकंड ऑप्शन सही कैसे था पिछले क्वेश्चन के अंदर, मैंने आपको बताया कि हमारे डिटेल्ड नोट्स के अंदर हमने ये चीज को कवर करवाया है कि देयर इज नो मिनिमम एंड देयर इज नो मैक्सिमम सीलिंग फॉर सीआरआर। आरबीआई जो सीआरआर रखना चाहता है वो रख सकता है। तो ये सीआरआर के क्वेश्चन का डिस्कशन का एंड यहां पर होगा। एसएलआर के ऊपर फोकस करते हैं हम। आपको नॉट करेक्ट क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। राइट, अब आपने बहुत सारे लोगों ने ए आंसर दिया है, तेज प्रताप यादव आपने सी आंसर दिया है। राइट, एज वेल एज पृथ्वी आपने भी आंसर सी दिया है। लेट अस सी डिस्कशन ऑन एसएलआर। व्हाट इज एसएलआर? राइट, नाउ व्हाट इज एसएलआर? यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर का मतलब ये होता है कि लेट अस से एचडीएफसी बैंक हैज 100 लाख रुपीज एज डिपॉजिट। राइट, मान लीजिए एसएलआर इज 15%, तो इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ द 100 लाख डिपॉजिट दैट एचडीएफसी बैंक हैज, 15% of that has to be in the form of cash, gold और other liquid assets such as government securities यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, गवर्नमेंट को भी रन करने के लिए पैसा चाहिए रहता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इशू करती है एंड पैसा रेस करती है, यानी कि लोगों से पैसा लेती है, यानी कि लोग गवर्नमेंट को कर्जा देते हैं, तो वो होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। राइट, तो बैंक जो है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी पड़ती है एसएलआर के अंदर। बैंक अपने पैसे को, अपने डिपॉजिट को गोल्ड के अंदर भी रख सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी रख सकती है, कैश के फॉर्म के अंदर भी रख सकती है। राइट, सो अगेन व्हाट इज एसएलआर? अगर 100 करोड़ 100 लाख रुपीस का डिपॉजिट है एंड 15% इज द एसएलआर, यानी कि उस 100 लाख के अंदर से 15% हैज टू बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अदर लिक्विड एसेट्स सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड एसेट्स? उन एसेट्स जिनको बेचना आसान होता है, जिनको आसानी से आप बेच सकते हैं, आसानी से आप उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी वैल्यू, विदाउट मेकिंग एनी मेजर लॉस, उस प्रकार के एसेट को लिक्विड एसेट कहते हैं। जो एसएलआर है दैट इज ऑल्सो परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो एक परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल इज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर। हु डिसाइड्स व्हाट दैट परसेंटेज विल बी? इट इज डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट, एंड एसएलआर कैन बी रिड्यूस्ड अप टू मैक्सिमम 40% ऑफ एनडीटीएल। तो हमने सीआरआर के केस में पढ़ा था कि देयर इज नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम लिमिट, बट इन केस ऑफ एसएलआर आप ध्यान में रखिए कि देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ अप टू 40% ऑफ एनडीटीएल। एसएलआर किन किन प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लागू हो रहा है? इट इज एप्लीकेबल टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर एसएलआर इज एप्लीकेबल। राइट, वाई इज एसएलआर इंपॉर्टेंट? अब देखिए सीआरआर का इंपॉर्टेंस क्या है कि जो डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ कैश है वो सीआरआर के अंदर जो कैश रखा है उसके थ्रू पूरी हो सकती है। आई एम रिपीटिंग, कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर के अंदर जो हमने कैश साइड में रख रखा है वो क्यों रख रखा है? उस कैश को हम यूज करेंगे बैंक्स की डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के पूरा करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कस्टमर ब्रांच में आ जाता है कोई भी दिन और अपना पैसा मांगता है, तो दैट इज डे टू डे रिक्वायरमेंट। राइट, तो उस डे टू डे रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सीआरआर का कैश काम आता है। एसएलआर की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए बैंक्स जो है ना लेंडिंग के बिजनेस के अंदर है, बैंक्स लोन्स देती है। अगर बैंक्स रिस्की लोन्स दे रही है तो उसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि लोन्स शायद रिकवर ना कर पाए। राइट, तो टू एंश्योर कि बैंक्स सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स सेफ प्रकार के एसेट्स के अंदर पार्क कर रही है, एसएलआर हेल्प करता है। अब जैसे गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सेफ एसेट, तो मान लीजिए अगर बैंक अपना थोड़ा डिपॉजिट को गोल्ड के अंदर रखती है तो दैट इज कंसिडर्ड अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। व्हाई? बिकॉज गोल्ड कैन वेरी इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड गोल्ड विल नॉट लूज इट्स वैल्यू वेरी इजीली। सिमिलरली जो भी डिपॉजिट्स बैंक के पास आया है, अगर बैंक उस डिपॉजिट को गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करती है, खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करती है, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। व्हाई?
बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना कर्जा चुकाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भाग नहीं जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर आपने पैसा दिया तो आपका पैसा सेफ रहेगा, राइट। तो अगर 100 लाख रुपया एचडीएफसी बैंक के पास मान लीजिए डिपॉजिट आता है और उसके अंदर से 15% एसएलआर है, यानी कि 15 लाख रुपया गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कैश के फॉर्म के अंदर रखा जाता है, तो वो पैसा सेफ रहेगा, यानी कि वो पैसा हमेशा सेफ रहने वाला है, वो कभी पैसा लॉस नहीं होने वाला है। आपने विजय माल्या को दिया, पैसा लॉस हो सकता है, आपने नीरव मोदी को दिया, लॉस हो सकता है, आपने सहारा को दिया, पैसा लॉस हो सकता है, आपने किसी भी इस प्रकार के बिजनेसमैन को पैसा दिया, उसका बिजनेस अगर खराब हो जाता है फॉर एनी रीजन तो आपका पैसा लॉस हो सकता है, बैंक अपना पूरा प्रिंसिपल लूज कर देगी, यानी कि जो उन्होंने पैसा दिया है लोन के ऊपर वो पूरा रिकवर नहीं कर पाने वाली है, फॉरगेट अबाउट द इंटरेस्ट, प्रिंसिपल भी वापस नहीं आएगा। बट अगर बैंक ने सम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट को गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर होल्ड करा हुआ है तो वो पैसा सेफ है, प्रिंसिपल सेफ है, गोल्ड का भाव बढ़ेगा तो बैंक को उसका प्रॉफिट मिलेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है वो भी बैंक को मिलेगा, राइट। तो प्रिंसिपल भी सेफ रहेगा और प्लस थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलेगा, अप्रिसिएशन भी मिलेगा। इट एंश्योर्स बैंक्स इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। नहीं तो बैंक शायद गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट ना करें, बट सिंस एसएलआर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट, हर बैंक को फॉलो करना पड़ता है, सो बैंक्स आर फोर्स्ड टू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। तो गवर्नमेंट को क्रेडिट मिल जाता है इन थ्रू एसएलआर। क्यों गवर्नमेंट को क्रेडिट कैसे मिल रहा है, क्यों गवर्नमेंट को लोन कैसे मिल रहा है, क्योंकि बैंक्स ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा, यानी कि गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, यानी कि गवर्नमेंट को लोन दे दिया, क्रेडिट दे दिया थ्रू एसएलआर मैकेनिज्म। SLR also helps to keep inflation under control। कैसे, जैसे CRR के केस में वैसे ही SLR के केस में। इन्फ्लेशन कब होता है, जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करा जा सकता है, वन ऑफ द स्टेप्स इज कि आप डिमांड को कम करिए, डिमांड को कंट्रोल के अंदर लेकर आइए। डिमांड को कंट्रोल में कैसे लाया जा सकता है, लोगों की जो परचेसिंग पावर है, लोगों के हाथ में जो पैसा है उसको कम कर दीजिए, तो लोग ऑब्वियसली कम डिमांड करेंगे। लोगों के हाथ में पैसे को कैसे कम करा जा सकता है, SLR बढ़ा दीजिए। एसएलआर बढ़ाने से क्या होता है, जो बैंक है, राइट, वो लेंडिंग नहीं कर पाएगी। अगर पहले एसएलआर 15% था, यानी कि पहले 100 लाख में से 15 लाख रुपया गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखना पड़ता था, अब आप एसएलआर को 20% कर दीजिए। एसएलआर को 20% करने से क्या होगा कि अब 20 लाख रुपया जो है लोन के या गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालना पड़ेगा, यानी कि जो एडिशनल 5 लाख रुपया पहले लेंड कर सकती थी बैंक, अब वो लेंड नहीं कर पाएगी। और लेंड अगर नहीं कर पाएगी, गोल्ड के फॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म के अंदर रखेगी, तो ऑब्वियस सी बात है उतना ही लोगों के हाथ में कम पैसा रहेगा, और लोगों के हाथ में कम पैसा रहेगा तो वो कम डिमांड करेंगे, और वो कम डिमांड करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन विल कम अंडर कंट्रोल एंड बैंक्स अर्न रिटर्न ऑन एसएलआर। ये चीज मैंने आपको समझाई है कि अगर बैंक ने मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करेगी, बैंक ने अगर गोल्ड खरीदा तो गोल्ड का भाव बढ़ सकता है, तो उसकी वजह से बैंक्स को फायदा हो सकता है। तो मोटी बात यह कि सीआरआर के ऊपर बैंक्स अर्न नो इंटरेस्ट, क्योंकि सीआरआर के अंदर बैंक्स जो है डेड कैश रखती है, राइट। कैश को सिर्फ अपने तिजोरी के अंदर बंद करके रखती है कि कस्टमर आएगा तो उसको कैश दे देंगे, कस्टमर आएगा तो उसको कैश दे देंगे, यानी कि वो पैसा जो है डेड इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर तिजोरी के अंदर बैठा है। लेकिन एसएलआर के अंदर वो पैसे को हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा रखा है और हर साल सरकार इंटरेस्ट दे रही है, उस पैसे को हमने गोल्ड में लगा रखा है और शायद हर साल गोल्ड का भाव बढ़ रहा है। लास्ट 2020 कैलेंडर ईयर के अंदर ही गोल्ड का भाव ऑलमोस्ट 28-30% इंक्रीज हो गया था, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि बैंक्स आर अर्निंग एंड रिटर्न, बैंक्स आर अर्निंग समथिंग ऑन एसएलआर। अगर हम एसएलआर को इंक्रीज करते हैं तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। कैसे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि अगर 15% एसएलआर है उसको मैं 20% कर देता हूं, तो इसका मतलब ये है कि द बैंक्स एबिलिटी टू लेंड विल रिड्यूस, मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। तो टैप वाली बात को याद करिए, अगर सीआरआर बढ़ा यानी कि टैप को टाइट कर दिया, एसएलआर बढ़ा यानी कि टैप को टाइट कर दिया, और टैप को टाइट कर दिया यानी कि मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब ये क्वेश्चन आपके सामने वापस से रखा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक्स टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। एसएलआर के थ्रू जो है बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर पैसा लगाना ही पड़ता है, यानी कि गवर्नमेंट को लोन देना ही पड़ता है, गवर्नमेंट को क्रेडिट प्रोवाइड करना ही पड़ता है। देयरफॉर स्टेटमेंट ए बराबर है। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू लोकल एरिया बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। हमारे डिटेल्ड हैंडआउट्स अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट का डिटेल हैंडआउट आपको दिया गया है और उसमें साफ लिखी गई ये बात है कि इट इज एप्लीकेबल टू लोकल एरिया बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये भी सही है, राइट। चौथा देखिए, बैंक्स अर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड अंडर एसएलआर। चौथा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर जब अगर पैसा लगाया जाता है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है, गोल्ड के अंदर पैसा लगाया जाता है तो गोल्ड का भाव बढ़ सकता है, राइट। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो तीसरा स्टेटमेंट है वो सीआरआर के रिलेटेड स्टेटमेंट है।
इन सीआरआर बैंक्स आर फोर्स टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश, यानी कि वॉल्ट यानी कि तिजोरी, कैश यानी कि कैश रोकड़ा, तो कुछ रोकड़ा जो है तिजोरी के अंदर रखना पड़ता है ताकि जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स है, कोई भी कस्टमर आएगा अपना पैसे को विड्रॉ करने के लिए, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सीआरआर का कैश काम आता है। एसएलआर का उसका डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, देयरफॉर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपका है सी। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की मैंने पूरी कोशिश करी है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज शेयर योर फीडबैक कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, राइट? चलिए बता दीजिए। रोहन नागर 2C इज करेक्ट, नीलेश सूर्यवंशी 2C इज करेक्ट। निखिल आपका क्वेश्चन है, सर हायर द सीआरआर मींस मोर लॉस टू द बैंक, राइट? कॉज देयर विल नॉट बी एनी प्रॉफिट ऑन सीआरआर लाइक एसएलआर। करेक्ट निखिल, बहुत सही कहा कि अगर सीआरआर पहले मान लीजिए 1% था और उस सीआरआर को 5% कर देते हैं, तो उसका मतलब ये है कि ज्यादा फॉर्म के अंदर कैश ज्यादा रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा कैश रखेंगे उतना कैश लेंड नहीं कर पाएंगे। कैश रखा यानी कि कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर मैं मेरे कबाड़ के अंदर 1 करोड़ रुपया रखकर बैठा हूं 100 साल तक, तो 100 साल बाद भी उसकी वैल्यू 1 ही करोड़ रुपया रहने वाली है। So I'm losing out on the opportunity to earn interest. I'm losing out on the opportunity to gain from that cash when I'm holding cash. इसलिए कोई भी कैश होल्ड नहीं करता है। आप बैंक अकाउंट के अंदर पैसा रखते हैं, एफडी में पैसा रखते हैं, आरडी में पैसा रखते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा रखते हैं, किसी को लेंड कर देते हैं पैसा, गोल्ड खरीद लेते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लेते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर पैसा लगा देते हैं, एलआईसी के अंदर पैसा लगा देते हैं, मेडिक्लेम में पैसा लगा देते हैं। लेकिन आप पैसा कैश के फॉर्म में आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कैश के फॉर्म में पैसा रखा यानी कि वो पैसा डेड पड़ा है, वो कुछ ग्रो नहीं होने वाला है, राइट? ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट्स जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है मेरा एक्सप्लेनेशन। अगर समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप दे दीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। मूविंग अहेड टू एन इजी क्वेश्चन। रेपो रेट का डेफिनेशन पूछा है। एग्जाम के अंदर आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो सुपरफिशियल, दूसरा इन डेप्थ। तो पहले 2 क्वेश्चन थे वो इन डेप्थ क्वेश्चन थे। आपका सीआरआर और एसएलआर के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से टेस्ट करा जाने लग रहा था। और ये जो क्वेश्चन है ये सुपरफिशियल क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको एक्सप्लेनेशन मालूम है, डेफिनेशन मालूम है, तो आप बड़े आराम से आसान से आप आंसर कर देंगे। आपका जो आईबी का एग्जाम है, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपको बहुत सारे सुपरफिशियल क्वेश्चंस देखने को मिले और ठीक ठाक नंबर ऑफ इन डेप्थ क्वेश्चन देखने को भी मिल सकते। तो सुपरफिशियल तैयारी तो आपकी स्ट्रांग होनी ही चाहिए, बट साथ ही साथ इन डेप्थ तैयारी भी आपको करनी चाहिए, राइट? स्टूडेंट स्टोर, निखिल पाटर, श्वेता सिंह, नीलेश सूर्यवंशी, पृथ्वी एज वेल एज सारे जितने भी हमारे साथ लगे हुए हैं, आप लोग ने जो है 3rd क्वेश्चन का आंसर दे देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं। रेपो रेट के बारे में आपको पूरी कहानी में सुनाता हूं, जो कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर करने के अंदर बहुत हेल्प करने वाली है। रेपो का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेस ऑप्शन। ये होता है रेपो का फुल फॉर्म। क्या होता है? रीपर्चेस ऑप्शन। अब मैं आपको समझाता हूं कि रेपो के अंदर होता क्या। रेपो इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स। आप आरबीआई बन जाओ, मैं एचडीएफसी बन जाता हूं, ठीक है? तो मान लीजिए कि मुझे कुछ फॉर एनी रीजन मेरे को पैसों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? कैश चाहिए मुझे, राइट? फॉर एनी रीजन। तो मैं आपके पास आऊंगा, आरबीआई के पास आऊंगा और मैं बोलूंगा कि मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है। अब आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन तो हो नहीं जो आप मुझे कैश निकाल के दे दोगे, राइट? तो आप आरबीआई मुझे क्या बोलोगे कि हाँ एचडीएफसी बैंक हम तुम्हारे को पैसा देने को तैयार है, लेकिन आपको ना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप हमारे से पैसा लेंगे तो फ्री में पैसा नहीं मिलेगा, यू विल हैव टू पे मी इंटरेस्ट। यानी कि एचडीएफसी बैंक विल पे एन इंटरेस्ट टू आरबीआई। व्हाई? बिकॉज एचडीएफसी बैंक इज बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। ये दुनिया का नियम है। अगर एचडीएफसी बैंक कस्टमर से पैसा बोरो कर रही है तो एचडीएफसी बैंक इंटरेस्ट पे करेगी। अगर मिस्टर मुकेश अंबानी एचडीएफसी बैंक से पैसा बोरो कर रहे हैं तो मिस्टर मुकेश अंबानी विल पे इंटरेस्ट टू एचडीएफसी बैंक। अगर एचडीएफसी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा बोरो कर रही है तो एचडीएफसी बैंक विल पे इंटरेस्ट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसी इंटरेस्ट को हम रेपो रेट कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। अब ये जो रेपो है, रेपो मैकेनिज्म जो है, ये कोलैटरलाइज्ड लेंडिंग का मैकेनिज्म है। कोलैटरलाइज्ड लेंडिंग का मैकेनिज्म है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलैटरलाइज्ड लेंडिंग? इसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। द मीनिंग ऑफ कोलैटरलाइज्ड लेंडिंग क्या है? सपोज कर लीजिए कि एचडीएफसी बैंक को 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो एचडीएफसी बैंक क्या करेगी कि एचडीएफसी बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। एचडीएफसी बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मान लीजिए। तो वो 1 लाख रुपए का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो एचडीएफसी बैंक आरबीआई को देगी, राइट? तो एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई को क्या दिया? एचडीएफसी बैंक की 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, राइट? एचडीएफसी बैंक के पास एक गवर्नमेंट बॉन्ड है 1 लाख रुपए का, तो एचडीएफसी बैंक आरबीआई को 1 लाख रुपए का बॉन्ड देगी, राइट? और आरबीआई जो है एचडीएफसी बैंक को 1 लाख रुपया कैश दे देगी, राइट? विद द अग्रीमेंट, विद द अंडरस्टैंडिंग कि ये जो बॉन्ड है जो कि एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई को बेचा और आरबीआई ने 1 लाख रुपया दिया एचडीएफसी बैंक को, इसी बॉन्ड को एचडीएफसी बैंक
1 दिन बाद या 5 दिन बाद या 7 दिन बाद या 15 दिन बाद आकर इसी बॉन्ड को वापस से खरीद लेगी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट अ लिटिल हायर प्राइस, राइट। वाई एट अ लिटिल हायर प्राइस? बिकॉज एचडीएफसी बैंक को इंटरेस्ट पे करना है। तो पहले साइकिल के अंदर क्या हुआ कि एचडीएफसी बैंक ने बॉन्ड दिया आरबीआई को और 1 लाख रुपया ले लिया, राइट। अब जब 1 लाख रुपया रिटर्न करना रहेगा एचडीएफसी बैंक को, तो एचडीएफसी बैंक वापस से आरबीआई के पास जाएगी और अपने ही बॉन्ड को वापस से खरीद लेगी। मान लीजिए 1,01,000 रुपए में खरीद लेगी, तो वो 1,01,000 में क्यों खरीदेगी? 1,000 रुपया इंटरेस्ट दे दिया। मान लीजिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई का 1 लाख रुपया यूज करा, उसके ऊपर एचडीएफसी बैंक को मान लीजिए 1,000 रुपए इंटरेस्ट देना आता है, ये मान लीजिए, राइट, ये मान लीजिए। तो पहले साइकिल के अंदर क्या हुआ? पहले साइकिल के अंदर एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई के पास रखी और 1 लाख रुपया ले लिया। और दूसरे साइकिल के अंदर वही सिक्योरिटी को वापस से एचडीएफसी बैंक ने खरीद लिया। कितने में? 1,01,000 रुपए में खरीद लिया। तो नेट आरबीआई के हाथ में कितना आ गया? 1,000 रुपया इंटरेस्ट के तौर के ऊपर आ गया, राइट। कोलैटरलाइज्ड लेंडिंग क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक भाग गई, राइट, या एचडीएफसी बैंक डूब गई या ऐसा कुछ हो गया, जो कि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए ऐसा हो गया, तो एटलीस्ट आरबीआई के पास जो है ना, वो एचडीएफसी बैंक की 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी हाथ में है। उस सिक्योरिटी को बेच के आरबीआई अपना पैसा खड़ा कर लेगा। वो कोलैटरल रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोन मांगने जाएंगे कोई बैंक से, तो बैंक आपको ऐसे नहीं कि लोन दे देगी, आपको बोलेगी अपना गोल्ड रखो, अपनी जमीन का पेपर दो, गाड़ी का पेपर दो, घोड़े का पेपर दो, राइट। तो वो कोलैटरल है कि कल को आप भाग गए, आप डूब गए, है ना, तो वो कोलैटरल को बैंक बेचेगी और अपने पैसे को खड़ा कर देगी, राइट। उसी प्रकार से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई के पास रखी, वो कोलैटरल है। कोलैटरल को बेच के आरबीआई अपना पैसा खड़ा कर सकती है। बैंक्स सेल सिक्योरिटीज टू आरबीआई विद अग्रीमेंट टू रीपर्चेस। एचडीएफसी बैंक sold security to RBI with an agreement to repurchase. HDFC Bank sold security to RBI and took 1 lakh rupees with an agreement that we will again purchase this security from you at a higher price of 1,01,000 rupees. तो इस प्रकार से रेपो मैकेनिज्म चलता है। बैंक्स रेपो मैकेनिज्म के थ्रू क्या करती है? अगर कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स है, राइट, उसको मीट करने के अंदर जो रेपो का जो पैसा मिलता है, उससे वो लिक्विडिटी नीड्स, क्रेडिट नीड्स फुलफिल हो सकती है। कई बार बैंक्स हैव लेंट मोर देन देयर डिपॉजिट्स, तो मिसमैच आ जाता है इन लेंडिंग एंड डिपॉजिट। तो कई बार बैंक्स को बोरो करना पड़ता है फ्रॉम द आरबीआई, सो दैट कि जो लेंडिंग और बोरोइंग, लेंडिंग और डिपॉजिट्स का मिसमैच है, उसको इवन आउट करा जा सके। It is also primary tool of RBI's monetary policy. What is the meaning of monetary policy? कि जो इंडिया के अंदर जो भी मनी पॉलिसी चलने लग रही है, मनी सप्लाई चलने लग रही है, उसको कंट्रोल करने का ये प्राइमरी टूल है। अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रेपो रेट को बढ़ा देती है, राइट, तो एचडीएफसी बैंक विल हैव टू पे अ हायर इंटरेस्ट टू आरबीआई while borrowing money from RBI. Since HDFC Bank has to pay a higher interest to RBI while borrowing money from RBI, therefore HDFC Bank will charge a higher interest rate from its consumers, from its customers, from its borrowers. ठीक है, यानी कि if the Reserve Bank of India increases the repo rate, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर एचडीएफसी बैंक विल इंक्रीज, बिकॉज उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आरबीआई को, एंड देयरफॉर एचडीएफसी बैंक विल चार्ज अ हायर इंटरेस्ट फ्रॉम द कंज्यूमर्स। ये चीज आपको बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए। और अगर रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया जाता है, यानी कि RBI is willing to lend HDFC Bank at a cheaper rate, and therefore HDFC Bank will be able to lend to its customers at a cheaper rate, right? It is a significant rate for common man. Why? Because जो भी interest rate आपके लोन के ऊपर लग रहा है, that is determined by what is the level of repo rate. If the level of repo rate increases, your loans will become costlier. If the repo rate reduces, your loans will become cheaper. अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। कैसे? पहले रेपो रेट 5% था, उसको 10% कर दिया, यानी कि द फंड्स हैव बिकम कॉस्टलियर। तो अगर आप पहले लोन लेने वाले थे 5% और आपने देखा अचानक से 10% हो गया, तो शायद आप लोन ना लें, और अगर आप लोन नहीं लेंगे यानी कि मनी सप्लाई रिड्यूस हो सकती है। दिस इज द एंटायर डिस्कशन ऑफ रेपो रेट, जो कि मैंने आपके सामने रखा है, एंड ये इजी क्वेश्चन आपके सामने रखा है। आपने इसके आंसर्स ऑलरेडी करेक्ट दे दिए हैं, सी आंसर आपने पहले ही दे दिया है। मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी डाउट्स है आप लोग मुझे बताएं, और जो मैंने आपको रेपो रेट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा है, यदि वो आपको क्लियरली समझ में आ चुका है तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दे दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। एनएस के आप पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट। बैंक रेट आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, रेपो रेट आउटडेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहला डिफरेंस है। बैंक रेट हैज बीन अलाइंड विद एमएसएफ रेट, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। रेपो रेट इज डिफरेंट फ्रॉम एमएसएफ रेट, नंबर 2। नंबर 3,
जो बैंक रेट है दैट इज मोर ऑफ अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नाउ, उसका कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूजेज नहीं है, लेकिन एज आई एक्सप्लेन टू यू कि रेपो रेट का बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूजेज है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है राइट, एज वेल एज जो मॉनेटरी पॉलिसी का कम्युनिकेशन है, एज वेल एज मनी सप्लाई को जो कंट्रोल करना है, वो सारे सारे काम जो है दैट इज हैपनिंग थ्रू द रेपो रेट. सो दीज आर सम ऑफ द ब्रॉड डिफरेंसेस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट, जो कि मैं आपको मुंह जबानी बता सकता हूं राइट. वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स. Moving ahead to the fourth question on marginal standing facility. Now this is a very important concept which will help you understand the entire concept of MSF. It is a facility under which scheduled commercial banks can borrow money from RBI for a period of 7 to 14 days. Scheduled commercial banks can dip in their cash reserve ratio portfolio to borrow under MSF. This facility is not available to cooperative banks and none of the above. You have to tell me कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. नोबडी इनसेन, श्वेता सिंह एज वेल एज नीलेश सूर्यवंशी, आपने थम्स अप दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच. महालक्ष्मी, आपका क्वेश्चन है, इफ एचडीएफसी बैंक गिव्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू आरबीआई अंडर रेपो, विल द बॉन्ड स्टिल काउंट अंडर एसएलआर? देखिए, ये वाला जो आप बात कर रहे हैं कि वो एसएलआर के अंदर काउंट होगा कि नहीं होगा राइट, वो वाली चीज के ऊपर जो है हम एमएसएफ के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं राइट. उस चीज को हम थोड़ा सा अलग रखते हैं, इस चीज को हम थोड़ा सा अलग रखते हैं. आपको महालक्ष्मी जी 5 मिनट वेट करना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मैं आपका वेट कर रहा हूं. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट स्टोर ने बी आंसर दिया है राइट. मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं कि अब अगर आप मुझे पूछेंगे कि ये क्वेश्चन इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, तो मैं आपको कहूंगा कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है. उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं. दिस इज नॉट अ डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन की रेपो रेट क्या है राइट. सेकेंड ऑफ ऑल, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑन सीआरआर एंड एसएलआर, बिकॉज सीआरआर एसएलआर कॉमन कॉन्सेप्ट है, कई स्टूडेंट्स उसको अच्छे से समझते हैं, जानते हैं. दिस क्वेश्चन इन ऑन अ लिटिल डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसएफ, जिसको कई लोग नहीं जानते हैं. और एमएसएफ के ऊपर भी जो क्वेश्चन है उसके अंदर काफी इन डेप्थ जाकर ये क्वेश्चन को पूछा गया है. Therefore, because of these factors, we will say that this question is a difficult question, and I can see that many students have given wrong answers over here. Please remember that in your examination there is something called as negative marking. तो आपको नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन को स्किप करना आना चाहिए. लेट मी टेल यू एवरीथिंग अबाउट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. अब आप बैंक, अगर आप अपने आप को एक बैंक के तौर पे इमेजिन करें, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको सडनली बहुत ज्यादा लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट आ सकती है राइट. आपने नहीं इमेजिन करा था कि बहुत ज्यादा आपके शॉर्टफॉल आ जाएगा बिटवीन लेट अस से योर डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग, लेकिन चलते चलते कभी ऐसा हो सकता है कि देयर इज अ स्पाइक इन लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट या देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट. ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर बैंक्स को लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो बैंक्स को प्रॉब्लम हो जाएगी. अगर इस चीज को आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप इमेजिन करिए कि हार्ट है, हार्ट को अचानक से ब्लड सप्लाई ज्यादा लग सकती है. मान लीजिए हार्ट एक्सरसाइज कर रहा है, हार्ट कुछ कर रहा है, तो उसे ब्लड सप्लाई ज्यादा लग सकती है. अब अगर उस टाइम के ऊपर हार्ट को जितनी ब्लड सप्लाई चाहिए उतनी नहीं मिलेगी तो हार्ट मैल फंक्शन हो सकता है. उसी प्रकार से क्रेडिट सिस्टम के अंदर जो ब्लड है वो मनी है. क्रेडिट सिस्टम के अंदर, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर मनी की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर सडन स्पाइक देखने को मिल सकता है. और अगर वो सडन स्पाइक आता है और मनी सप्लाई नहीं इंक्रीज होती है तो फिर बैंक्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, जैसे हार्ट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? इट इज द पिनल रेट, इट इज द पेनल्टी रेट एट विच बैंक्स कैन बोरो ओवरनाइट ओवर एंड अबव लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क लिमिट. यानी कि लैफ, यानी कि रेपो और रिवर्स रेपो के थ्रू जो पैसा लिया दिया जा सकता है, रेपो रेट के थ्रू आप पैसा बोरो कर सकते हैं फ्रॉम आरबीआई. अगर आपको जितना रेपो के थ्रू पैसा अवेलेबल है उससे भी ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है तो आपको पेनल्टी इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ेगा. और पेनल्टी इंटरेस्ट चुकाकर आप जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा बोरो कर सकते हैं. वही पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके ऊपर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ओवरनाइट पैसा बोरो कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एमएसएफ रेट, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? बैंक्स को क्या करना पड़ता है कि जो उनकी एसएलआर की सिक्योरिटीज है उनको प्लेज करना पड़ता है विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राइट. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन एसएलआर सिक्योरिटीज के अगेंस्ट ओवरनाइट पैसा एट पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स को देता है. पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि रेपो रेट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एमएसएफ के अंदर आपको पैसा बोरो करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. एमएसएफ रेट इज ग्रेटर देन रेपो रेट इज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट. ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए. इसीलिए हम एमएसएफ रेट को पेनल्टी रेट कहने लग रहे हैं कि जो रेपो रेट के थ्रू पैसा आपको मिल रहा है
उससे ज्यादा पैसा अगर आपको चाहिए तो ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, और वो ज्यादा इंटरेस्ट को ही हम पेनल्टी रेट यानी कि एमएसएफ रेट कहने लग रहे हैं। MSF rate is the upper band of the interest rate corridor. What is the meaning of interest rate corridor? इंडिया के अंदर जो इंटरेस्ट रेट चलने लग रहा है, राइट, दैट इज बिटवीन लेट अस से रिवर्स रेपो रेट एंड द MSF रेट, राइट। तो जो RBI कमर्शियल बैंक्स के से इंटरेस्ट चार्ज करता है या इंटरेस्ट पे करता है, दैट इज बिटवीन रिवर्स रेपो रेट एंड द MSF रेट। तो MSF रेट इज द अपर बैंड ऑफ द इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर। अगर बैंक्स ने अपना डिपॉजिट्स RBI के पास रखा तो बैंक्स विल अर्न रिवर्स रेपो रेट। अगर बैंक्स ने RBI के से पैसा मांगा थ्रू द नॉर्मल विंडो तो बैंक्स विल हैव टू पे अ चार्ज विच इज कॉल्ड रेपो रेट। और अगर बैंक्स ने ज्यादा पैसा मांगा ओवर एंड अबव जो रेपो के थ्रू अवेलेबल है, देन बैंक्स विल हैव टू पे अ पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज कॉल्ड द MSF रेट, दैट इज कॉल्ड द अपर बैंड ऑफ द इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर। इट हेल्प्स टैकल अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक्स। का मतलब ये है, ये मैं हिंदी में आपको बता चुका हूं कि अनएंटिसिपेटेड यानी कि आपने पहले नहीं सोचा था कि लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट आएगी, लेकिन अचानक से आ जाती है। जब वो आ जाती है तो वो पूरी होनी चाहिए रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? RBI से बोरो करके पूरी होगी। सिंस हम RBI से ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, ओवर एंड अबव लैफ मांगने लग रहे हैं, देयरफॉर हमारे को पेनल्टी इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। और ये फैसिलिटी अवेलेबल है टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एज वेल एज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को ये फैसिलिटी अवेलेबल है MSF के अंदर बोरो करने की। और जैसे CRR, SLR और रेपो रेट के अंदर हमने डिस्कस करा, अगर MSF रेट को बढ़ाया जाएगा सो इट विल बिकम कॉस्टलियर फॉर बैंक्स टू बोरो, देयरफॉर बैंक्स मे नॉट बोरो। इफ द बैंक्स डू नॉट बोरो, देयरफॉर द मनी सप्लाई विल कम डाउन, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये सारी चीजों को आपको मैंने एक्सप्लेन करा है थ्रू MSF। अभी क्वेश्चन मैंने आपके सामने वापस रखा है, क्या 7 to 14 डेज वाली बात सही है? आप डिसाइड करिए। क्या CRR पोर्टफोलियो के अंदर की जो सिक्योरिटीज है उसको यूज करके हम MSF से बोरो करते हैं, या फिर SLR पोर्टफोलियो की सिक्योरिटीज को प्लेज करके हम MSF से बोरो करते हैं? आप डिसाइड करिए। इसमें लिखा है कि फैसिलिटी नॉट अवेलेबल टू कोऑपरेटिव बैंक्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप डिसाइड करिए। एंड डी स्टेटमेंट है नन ऑफ द अबव। पूछा आपको यह है कि MSF के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सोच समझ के आपको बताना है। जो भी आपका आंसर है उसको आप लोग सोच समझ के लॉक करेंगे, राइट। स्टूडेंट स्टोर आपने कहा कि ओ रॉन्ग हो गया, ये एग्जाम के अंदर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। EduTap के आप स्टूडेंट है, शानदार तरीके से आपको परफॉर्मेंस देकर आना है। आंसर इस क्वेश्चन का बन जाता है डी। CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रेपो क्या होता है, MSF क्या होता है, बड़ा डिटेल के अंदर खोल खोल कर टाइम लेकर मैं आपको सारी चीजें समझाने लग रहा हूं। इसी प्रकार से हमने हमारे कोर्स के अंदर सारे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स अक्रॉस द डोमेन्स आपको एक्सप्लेन करे हैं। बहुत ज्यादा शानदार आपको मजा आएगा हमारे कोर्स के अंदर जुड़कर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। बात करेंगे सिंपल क्वेश्चन रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, आप बता दीजिए। बोरोइंग बाय शेड्यूल बैंक्स फ्रॉम RBI, लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक्स टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, purchase and sale of government securities by the RBI, operations undertaken by the RBI to manage exchange rate volatility। सुपरफिशियल क्वेश्चन है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन का डेफिनेशन भी आता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आंसर कर जाएंगे। और मेरा पूरा विश्वास ये है कि 99.99% जनता जो थोड़ा बहुत जानती है, देखा है, वो ये प्रकार के क्वेश्चन को इजीली सही आंसर करेगी। नीलेश सूर्यवंशी, पृथ्वी, आपके आंसर 5C आ चुके हैं। बाकी सारे लोगों की भी मुझे पूरी उम्मीद है कि C ही आंसर आने वाला है। Let me give you complete understanding of open market operations. What is open market operations? Purchase or sale of government securities by RBI, right? सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी से इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी होता है, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी से RBI लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करती है। पिचकारी वाली बात को याद रखना, बकेट को याद रखना। बकेट में पानी है, अगर हमने पिचकारी में से पानी खींचा ऊपर तो बकेट में पानी कम हो जाएगा, उस पानी को रिलीज करा बाहर से लाकर तो पानी इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज को याद रखना। आपको अभी मैं एनिमेशन लगा के सारी चीजें समझाता हूं। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक प्रकार का ऐसा होता है जिसमें RBI परचेसेस बॉन्ड्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, यानी कि देयर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देयर आर कमर्शियल बैंक्स, राइट। व्हाट विल RBI डू? RBI इज परचेसिंग बॉन्ड्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स के पास जो सिक्योरिटीज है, RBI ने उन सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक से परचेस कर लिया है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड खरीद रही है बैंक कमर्शियल बैंक से, तो ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कैश देना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा टू कमर्शियल बैंक्स। ये जो पैसा कमर्शियल बैंक्स को मिला फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट,
ये पैसा बैंक्स क्या करेगी इस पैसे का? ऑब्वियस ही बात है उस पैसे को बैंक्स अपने पास रख के नहीं रखेगी, वो पैसे को लेंड करेगी, बिकॉज बैंक्स का बिजनेस है लेंडिंग करना और उस लेंडिंग के थ्रू कमाना, उस लेंडिंग के थ्रू इंटरेस्ट अर्न करना. सो व्हाट विल बैंक्स डू? Banks will be able to lend this additional amount of money to people. What has happened is कि earlier banks were not having this money. Earlier banks were not having this money, but since the Reserve Bank of India purchased bonds from these banks and released the extra amount of money, so this extra amount of money is now available which can be lent to the people. और ये people उस पैसे को लेकर क्या करेंगे? इस पैसे को खर्चा करेंगे. तो एक एरो निकल रहा है जो कि मेरे सर के ऊपर पॉइंट कर रहा रहेगा, राइट. बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके पीछे मैंने स्विंग मशीन, टीवी, ट्रैक्टर, सोफा, स्कूटर, इस प्रकार की चीजों को दिखा रखा है. तो लोग क्या करेंगे कि ये लोग पैसे को बोरो करेंगे और अपना टीवी, सोफा, स्कूटर, ट्रैक्टर, ये सारी चीजों को जो खरीदने की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर लेंगे, राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या हुआ कि the money supply has increased. How has money supply increased? RBI has released this extra money, right, through purchase of bonds. So purchase of bonds resulting in injection of liquidity. तो purchase of bond यहाँ पर हुआ because of its injection of liquidity system के अंदर हुई, और ये liquidity जब लोगों के हाथ में गई तो लोगों ने डिमांड को इंक्रीज कर दिया. ये हो गया आपका एक टाइप का ओपन मार्केट ऑपरेशन. दूसरा टाइप का ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? आरबीआई क्या करेगी कि कमर्शियल बैंक्स को बॉन्ड्स सेल करेगी. अब अगर कमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई से बॉन्ड्स को परचेज करा है तो ऑब्वियस ही बात है कमर्शियल बैंक्स को पेमेंट करना पड़ेगा टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि कमर्शियल बैंक्स को कैश देना पड़ेगा टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब अगर कमर्शियल बैंक्स कैश देने लग रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तो ऑब्वियस ही बात है कि उनकी लेंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि वो लेंडिंग करेंगे लेकिन उतनी लेंडिंग नहीं कर पाएंगे जितनी वो पहले कर पा रहे थे या जितनी वो प्रीवियस केस के अंदर कर पा रहे थे. तो अगर उनकी लेंडिंग पावर कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली लोग को लोन कम मिलेगा, लोन कम मिलेगा तो डिमांड कम क्रिएट होगी, डिमांड कम क्रिएट होगी तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज मनी सप्लाई रिड्यूस हो गई है. मनी सप्लाई कैसे रिड्यूस हुई? क्योंकि आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को जो है बॉन्ड्स बेचे और उनका जो कैश है उसको अब्सॉर्ब कर लिया. सो मनी सप्लाई हैज रिड्यूस्ड. सो सेल ऑफ बॉन्ड्स रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ लिक्विडिटी कॉजिंग अ डिक्रीज इन डिमांड. सेल ऑफ बॉन्ड्स करा आरबीआई ने, कमर्शियल बैंक्स को बॉन्ड बेचे, कमर्शियल बैंक्स ने कैश आरबीआई को दिया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो गई. क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी उनके पास कम हो गई, और लिक्विडिटी जब सिस्टम के अंदर कम हो जाती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, राइट. अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में करना है सो आरबीआई कैन सेल बॉन्ड्स टू बैंक्स and banks will pay money to RBI, therefore money supply will reduce. money supply reduce होगा, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन विल कम अंडर कंट्रोल. अगर ग्रोथ को बूस्ट करना है यानी कि लोगों के हाथ में पैसा देना है ताकि वो खर्चा करे तो आरबीआई पहले वाला केस का काम करेगी कि आरबीआई परचेस करेगी गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, रिलीज करेगी मनी को, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, लोग डिमांड क्रिएट कर पाएंगे. तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई विल सेल बॉन्ड्स, राइट, और अगर ग्रोथ को बूस्ट करना है तो आरबीआई विल परचेज बॉन्ड्स. ये प्रकार की सिंपल लॉजिक आपके याद रहनी चाहिए. और ऑब्वियसली आपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी सही दे दिया है. आंसर इसका है सी, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई. तो मैंने कोशिश पूरी करी है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस को एक्सप्लेन करूं सच दैट कि डिफिकल्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन आए रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, उस क्वेश्चन को भी आप आसानी से टैकल कर पाएंगे. आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. दिस इज द होमवर्क बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेक्चर जो कि आपको आंसर करना है. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल स्टूडेंट्स participating in this session that you have to give answers to this homework question within 1 hour of viewing this session by commenting in the YouTube ka comment section. I hope that you will do homework seriously and sincerely because it will help you in the examination. I request you to please share your scores and feedback with me and then we will close this session. हमने आपके साथ काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करा है इस सेशन के थ्रू, और जिस तरीके से आपको सारी चीजें समझाई गई है उसी तरीके से हमारे कोर्स के अंदर भी हम आपको सारी चीजें सिखाते हैं, राइट. रॉजर, श्वेता, नोबडी, एन कुमार, तेज प्रताप, जयेश, एज वेल एज सनत खान, एनएसके, महालक्ष्मी, पृथ्वी, निरेश, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ओपन मार्केट ऑपरेशंस के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं सो प्लीज गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज शेयर योर स्कोर्स विथ मी बिफोर एग्जिटिंग फ्रॉम दिस सेशन. चलिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने बता दीजिए. श्वेता, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन. थैंक यू एवरी मच. थैंक यू एवरीबडी फॉर योर पार्टिसिपेशन इन दिस सेशन. विल ब्रिंग दिस सेशन टू एन एंड. थैंक यू वेरी मच. ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद.